Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yazid sir, and this is video lecture number 6 for the class 11th. And in the previous video lectures, we had discussed the many other concepts, and in the video lecture number 5, we had discussed the chemical equilibrium, and we had also discussed the concept of equilibrium constant. But inshallah, we are going to discuss that concept, equilibrium constant, and more other things related to the equilibrium constant in the coming video lectures, starting from video lecture number 7. But today we are going to discuss the dynamic nature of equilibrium. I just want you to listen that dynamic nature of equilibrium, the concept of it has already been given to you. But that was a quick concept. Today we are going to discuss the whole concept of dynamic nature of equilibrium throughout the lecture. So you have to understand this concept properly. Now, since we are discussing equilibrium, and you know that the concept of equilibrium is discussed only in case of a reversible processes, and today we are discussing it in terms of chemical process. You already know, my dear students, that reversible process is that type of a process in which the reactants, not only reactants react to form products, but the products also react back to form the reactants. We call such process as reversible process, and reversible process is shown by two-headed arrows which are put between the reactants and products. It means A and B has a tendency to react with each other and form C and D, and C and D has back tendency to react with each other and to form the reactants A and B. So such type of chemical processes are known as reversible chemical processes, and only in reversible processes the concept of equilibrium is utilized. Now, in order to understand it, I have already told you that initially the concentration of reactants will be maximum and the products will not be yet formed because the reaction is yet to get started, and धीरे धीरे क्या होगा, reactants की concentration dear students कम होने लगेगी और products की concentration धीरे धीरे बढ़ने लगेगी. जो ही products की concentration बढ़ने लगेगी यानी कि products भी बनेंगे, फिर products क्या करेंगे, वो आपस में वापस react करके reactants को बनाएंगे. तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे basically दो processes है. एक है forward process. देखो forward process में क्या होता है, reactants combine हो रहे हैं और products बना रहे हैं. दिस इज द फॉरवर्ड प्रोसेस जो मैंने राइट साइड की तरफ दिखाई है, तो वो मैंने अलग से भी लिखा. देखो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है यहाँ पे, जहां पे ए और बी आपस में मिलते हैं और वहां पे प्रोडक्ट सी एंड डी बनता है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सिंस दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस और यहाँ पे इसका मतलब बैकवर्ड प्रोसेस भी है. बैकवर्ड प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट सी एंड डी वापस मिल रहे हैं और बना रहे हैं रिएक्टेंट्स दैट इज ए एंड बी, इसलिए मैंने बैकवर्ड प्रोसेस आपको अलग से दिखाया. इन दो केमिकल रिएक्शंस का यानी कि फॉरवर्ड प्रोसेस एंड बैकवर्ड प्रोसेस मैंने साइड में लिखा है, इनको हम एक साथ ऐसे दिखाते हैं. That means here is the forward arrow, here is the backward arrow. In order to understand the concept, you know that initially the reaction will proceed, and after a certain interval of time, there will be a stage, there will be a time when the process will reach at a certain state. We call that as equilibrium. My dear student, तो equilibrium पे क्या होता है? You know that equilibrium पे दो processes जो होती है, forward process भी और backward process भी, वो होती है at an equal rate. Now, in order to understand it, initially rate of forward process ज्यादा होगी. देखो forward process क्या है, जिसमें A और B आपस में मिलकर C and D बनाता है, this is a forward process. इनिशियली ये ज्यादा होगी बिकॉज मैं आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सिखा चुका हूं दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, पहले इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रेट की जो रिएक्शन रेट है वही ज्यादा होगी. तो इसलिए मैंने फॉरवर्ड रेट यहाँ पे लिखा है. देखो पहले इनिशियली फॉरवर्ड रेट क्या है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम हो रही है. मैक्सिमम है उस टाइम सी एंड डी नहीं बनी है, इसका मतलब ये है कि उनकी रेट जो है वो भी जीरो है. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जो ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन उनकी कंसंट्रेशन कम होने लगेगी बिकॉज वो कॉमन सेंस से वो कंबाइन हो रहे हैं. तो इसका मतलब है जब इनकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो कंसंट्रेशन जब कम हो गई इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी. तो इसलिए आप देखोगे फॉरवर्ड रेट जो है, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड प्रोसेस, उसकी रेट जो है वो कम होने लगी बिकॉज मैंने इस एक्सिस पे रेट दिखाया. तो ये जब कम होगी, लेकिन यहां से क्या होगा, जो ही रिएक्टेंट्स की ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी, लेकिन उस टाइम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. अब बैकवर्ड प्रोसेस में आप देखिए जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की बनेगी
उसके हिसाब से उनकी रेट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब धीरे धीरे जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन का प्रोसीड होने से बढ़ जाएगी, इसका मतलब है बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। तो आप देखिए टाइम के साथ साथ देखो क्या हो रहा है, देखो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन तो कम हो रही है, लेकिन बैकवर्ड प्रोसेस जो है, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ रही है। और अल्टीमेटली एक स्टेज आएगा जहां पे दोनों रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स इक्वलाइज होगी। अब देखिए खुद ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या रेट होगी, सपोज यहाँ पे इतनी रेट होगी, और ये रेट जो है वो फॉरवर्ड प्रोसेस के लिए भी सेम होगी, बैकवर्ड प्रोसेस के लिए भी सेम होगी। तो इसका मतलब है उस स्टेज को आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम पहुंच गया। तो वही हम कहते हैं दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, देखिए अब इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगी, वो आपको जानना है दूसरे ग्राफ से। फिर मैं आपको डायनामिक नेचर के बारे में बताऊंगा और फिर हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देके इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए इनिशियली आपने देखा जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की तब रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा थी, जाहिर सी बात है, और उस टाइम प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी, बिकॉज प्रोडक्ट्स अभी बने नहीं थे। तो देखिए यहां पे मैंने एक और ग्राफ डाला बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन यहां पे हम रिएक्टेंट्स की भी लेंगे और प्रोडक्ट्स की भी लेंगे। देखिए इनिशियली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम, एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज 0। तो देखिए इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, देखो यहाँ पे मैंने ए एंड बी दिखाया, तो यहाँ पे बेसिकली ए एंड बी है, ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट्स है हमारे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे जब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है उस टाइम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम है, और वो मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो मैक्सिमम, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन यहाँ 0 से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन उस टाइम प्रोडक्ट्स बने नहीं थे, बिकॉज रिएक्शन के इनिशियली फेज में हुआ, स्टार्टिंग पे हुआ, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 है। देखो यहाँ पे जो है ये मान लो सी एंड डी है, ये मान लो सी एंड डी उस टाइम 0 है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अब रिएक्शन जो हो रही है, यानी कि रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं आपस में और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है और इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। यही चीज आपने सीखी है। तो देखिए इसका मतलब है जो ही रिएक्शन रेट प्रोसीड हो रही है टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होने लगी। देखिए ये ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वो बढ़ने लगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक स्टेज आएगा, देखो ये कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, लेकिन एक स्टेज आ रहा है अब कॉन्सेंट्रेशन जो ए एंड बी की है वो देखो अब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। अगर मैं इस ग्राफ को आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी, और धीरे धीरे जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ने लगेगी, वो भी वहां पे भी एक स्टेज आता है जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वलाइज होती है। यानी कि मैं इक्वल तो नहीं कहूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि कांस्टेंट रह रही है। देखो अब आप टाइम एक्सिस को आप कितना भी आगे बढ़ाइए, ये दो लाइंस एज इफ ये पैरेलल जा रहे हैं एक दूसरे के, लाइक दिस। इसका मतलब क्या है, अब इन दो की देखिए, अब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो भी है, किसकी कम है किसकी ज्यादा है, लेकिन वो जो भी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि इक्विलिब्रियम पे कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट व्हाट स्टेज, एट इक्विलिब्रियम स्टेज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। इट रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। But the two processes, one is a forward process, another is a backward process. They are going at an equal rate. देखिए आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा पहली बार एट इक्विलिब्रियम, मैंने कहा पहले इक्विलिब्रियम पे क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो प्रोडक्ट्स की है वो है C, और जो इसका दूसरा प्रोडक्ट है वो D। और उस टाइम जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की रह गई है सिस्टम में इक्विलिब्रियम पे, वो कितनी है, सपोज A और B। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम इज वन इज C, ऐसे में लिख सकता हूं, और दूसरा जो है वो D। ऐसे आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है एट इक्विलिब्रियम। What is the molar concentration of reactants left at equilibrium? मैं कहूंगा रिएक्टेंट्स की क्या है, एक है A ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में और दूसरा है B, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। देखिए अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, अब ये चेंज नहीं होगी। As long as equilibrium is there, this concentration will not change. And what will be the concentration of reactants left at equilibrium? उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी माय डियर स्टूडेंट्स, अब वो चेंज नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं जब पैरामीटर्स सिस्टम में एक स्टेज पे चेंज नहीं होते हैं, हम कहते हैं कि सिस्टम में माय डियर स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आ गया है।
और आपको पता है दैट इक्विलिब्रियम जब आ गया सिस्टम में, वहां पे दो प्रोसेसेस होती है और होती है अपोजिट टू ईच अदर एंड एन इक्वल रेट। वन इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस, अनदर इज अ बैकवर्ड प्रोसेस। अब आप कहोगे सर आपने कहा इक्विलिब्रियम पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, लेकिन प्रोसेस तो हो रहा है ना। लेकिन याद रखिए इसका मतलब ये हुआ जितनी रेट से फॉरवर्ड प्रोसेस हो रहा है उतनी रेट से ही बैकवर्ड प्रोसेस हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जितना ए एंड बी कंबाइन होके सी एंड डी बना रहा है। मान लो, देखो मैं आपको इस चीज को क्लियर करूंगा ऐसे। मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम जो है यानी कि सी एंड डी है, मान लो ये है लेट्स सपोज, जस्ट मैं नॉर्मल एग्जांपल दूंगा, लेट्स सपोज 100 ग्राम, लेट्स सपोज 100 ग्राम, 100 ग्राम। एंड मान लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट है एट इक्विलिब्रियम, मान लो वो है 40 ग्राम, मान लो 40 ग्राम। देखो फॉर एग्जांपल वो 100 ग्राम है, वो 40 ग्राम है। अब देखो क्या है, अब 100 ग्राम उनका कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स का 40 ग्राम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, अब ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन प्रोसेस तो अभी भी हो रहा है, इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं है। इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, याद रखिए इक्विलिब्रियम जो है, इस चीज को आप समझिए, इट इज नॉट स्टैटिक। इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक बट इट इज मूविंग, इट इज डायनेमिक, वी कॉल दैट। कहने का क्या मतलब है, यानी कि अब अगर मान लो 40 ग्राम में से मान लो, यानी कि रिएक्टेंट्स, मान लो आप कहोगे सर इक्विलिब्रियम पे तो प्रोसेस हो रही है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी इक्वल रेट पे। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या हमने रखी, सपोज 40 ग्राम, प्रोडक्ट्स की 100 ग्राम। अब मान लो इक्विलिब्रियम पे अगर 40 ग्राम में से 5 ग्राम, 40 ग्राम में से 5 ग्राम रिएक्टेंट्स के कंबाइन हो रहे हैं और वो बना रहे हैं प्रोडक्ट। आप क्या कहोगे सर फिर तो ये 35 ही रहेगा। देखिए अगर आप 40 में से 5 ग्राम जो है वो रिएक्ट कराओगे तो बचे कितने, 35। ये कितना हो गया, ये वैल्यू कितना होगा चेंज, ये तो 105 बन जाएगा। फिर तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई। सर आपने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की जो होगी इक्विलिब्रियम पे, वो तो कांस्टेंट रहेगी, वो तो 140 रहनी चाहिए। लेकिन अब आप कह रहे हो रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस भी हो रहे हैं, मान लो 5 ग्राम मिल गए यहां से, फिर तो ये 35 बन जाएगा, 105 बन जाएगा, ये तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई, तो इक्विलिब्रियम नहीं रहा। लेकिन अभी हमने बैकवर्ड प्रोसेस नहीं की, जिस रेट से फॉरवर्ड प्रोसेस जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड प्रोसेस जाएगा। मतलब कि अगर रिएक्टेंट्स में से 5 ग्राम आपस में रिएक्ट हुए और उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, यानी कि कंसंट्रेशन एक क्या बेसिक चेंज, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो चेंज हो सकती थी, लेकिन उसी टाइम वापस क्या होता है, वहां से 5 ग्राम वापस मिलते हैं प्रोडक्ट्स के और वो रिएक्टेंट्स को वापस बनाते हैं। यानी कि ना ही ये 100 वैल्यू को चेंज होने देता है, ना ही ये 40 वैल्यू को चेंज होने देता है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय सेइंग दैट at equilibrium the concentration of reactants and products, which we called as an equilibrium mixture, the concentration of reactants and products at equilibrium is called equilibrium mixture. And second, at equilibrium the two opposite forces, that means the rate of forward process is equal to the rate of backward process. That means equilibrium तो आ गया है, but दो processes जो हो रही है my dear students, वो continuously हो रही है। reactants change हो रहा है products में और products वापस उसी rate से reactants में change हो रहा है, यानी कि system रुका हुआ नहीं है बगैर equilibrium पे है। And we call that concept as dynamic nature of equilibrium, my dear students. It's a very important concept. It's a very important concept that you have to understand. Now we are going to give the examples now. ये तो general example मैंने दिखाई, अब मैं basic example आपको दिखाऊंगा जिससे हम dynamic nature of equilibrium जो है वो समझेंगे। देखिए मैं ये रेज करता हूं। Let's suppose we are going to discuss the Haber's process. चलिए Haber's process सबने सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने इसका, Haber's process. Haber's process क्या होती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा Haber's process. Haber's process is a Haber's process is a reversible process, and this process takes place at high temperature and high pressure. हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हालांकि हमें समझना कुछ और चीज है, हमें डायनेमिक नेचर समझना है, लेकिन ये इन कंडीशंस पे होती है, ये रिएक्शन इन कंडीशंस पे होती है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और यहाँ पे कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होता है,
आयरन जो मोलिब्डेनम के प्रेजेंस में जो है प्रोसेस करता है। प्रोसेस क्या है? इन दिस प्रोसेस देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाया जाता है। देखिए केमिकल प्रोसेस है, N2 इसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, और यहाँ पे जो बनता है, सिंस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे रिवर्सिबल लेना है, 2 हेडेड एरोज लेने हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे बनता है अमोनिया गैस दैट इज NH3। ये एक प्रोसेस है, और अगर आप इसको बैलेंस करना चाहोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा और ये ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक केमिकल प्रोसेस है, इट्स अ रिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस, और इस केमिकल प्रोसेस में हमें क्या करना है? हमें इस केमिकल प्रोसेस में सीखना है डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ही एग्जांपल के साथ आपका सारा डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और हम इंशाल्लाह 1-2 और एग्जांपल्स भी देंगे। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 प्रोसेस है, बताइए मुझे फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है इसमें? फॉरवर्ड प्रोसेस, अगर आप फॉरवर्ड प्रोसेस की बात करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, तो फॉरवर्ड प्रोसेस में क्या होता है? देखो राइट की तरफ, उसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली 2 प्रोसेस, वन इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस, अनदर इज अ बैकवर्ड प्रोसेस। तो नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस एंड इट फॉर्म्स अमोनिया, दिस इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस। बैलेंस करके लिखूंगा, दैट इज 2 NH3, दिस इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे फॉरवर्ड प्रोसेस, लेकिन सिंस रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी, यानी कि अगर आप देखो इसका मतलब क्या है, अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले रहे हो और कंटेनर जो है वैसल क्लोज रख रहे हो, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन क्लोज्ड कंटेनर्स, स्पेशली इन केस ऑफ दोज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हिच आर गैसियस इन नेचर। बिकॉज अगर आप कंटेनर को माय डियर स्टूडेंट्स ओपन करोगे ना तो एक प्रोडक्ट या गैसियस प्रोडक्ट्स भाग जाएंगे, फिर वो रहेंगे नहीं वहां पे वापस रिएक्ट बैक करने के लिए, तो इक्विलिब्रियम उन केसेस में नहीं आता है। याद रखिए ओपन वेसल्स में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है, स्पेशली फॉर द रिएक्शंस इन व्हिच गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। दूसरी बात क्या है, जो ये बन गया है यहाँ पे, अगर आप वेसल को ओपन रखते फॉर एग्जांपल, ये तो भाग जाता या ये भी भाग जाते फॉर एग्जांपल, तो लेकिन आपको क्या करना है? कंटेनर को आपको क्लोज करना है। अब देखो क्या यहाँ पे नाइट्रोजन की बैक टेंडेंसी है, इन कंडीशंस पे ये वापस मिलता है और ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस वापस देता है, तो वो तो बैकवर्ड प्रोसेस हो गई। बताइए मुझे बैकवर्ड प्रोसेस क्या है? फिर बैकवर्ड प्रोसेस में ऐसे लिखूंगा कि इसमें बैकवर्ड प्रोसेस है अमोनिया दैट इज NH3, मैं बैलेंस के साथ लिख रहा हूं, दैट इज ट्वाइस, दैट गिव्स बैक नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज N2 गैस एंड हाइड्रोजन गैस, दैट मींस 3 times H2 gas. So these are the 2 processes. So 2 processes are going, one is a forward process, another is a backward process. अब इनिशियली क्या होगा? सेम कंडीशन है यहाँ पे, इनिशियली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगी, उस टाइम अमोनिया बना नहीं होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, धीरे धीरे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी, और हमारा जो प्रोडक्ट है अमोनिया उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी, और एक टाइम आएगा जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वलाइज होगी। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जहां पे मैंने Na+B लिखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में ग्राफ में, समझो वहां पे हमारा कौन कौन सा रिएक्टेंट, एक तो है नाइट्रोजन माय डियर स्टूडेंट्स N2 प्लस, और दूसरा है 3 times H2, क्या यही है? ये हमारे रिएक्टेंट्स है, ये इसमें मिल रहा है। पहले इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी रिएक्शन के स्टार्टिंग में, उस टाइम प्रोडक्ट्स नहीं बने होंगे, तो उस टाइम अमोनिया 0 होगा, तो यहाँ पे अमोनिया जो है NH3, हालांकि मैं बैलेंसिंग फॉर्म में ही लिखूंगा, ट्वाइस NH3, वो उस टाइम 0 होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आप खाली N2 H2 लिख सकते हो, आप बैलेंसिंग के लिए 2-3 मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन लिख भी सकते हो, कोई मसला नहीं। अब देखो क्या, अब धीरे धीरे जब रिएक्शन प्रोसीड हो रही है टाइम के साथ, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आएगी, ये कम होने लगेगी, लेकिन प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। देखो वही हो रहा है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कमी आ रहा है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं एक और, ये तो मैंने जनरल ग्राफ दिखा, मैं एक और ग्राफ ऊपर दिखाने जा रहा हूं, देखो मैं एक और ग्राफ दिखाने जा रहा हूं बिल्कुल सेम इसी के लिए। धीरे धीरे जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी प्रोडक्ट्स की, तो बढ़ जाएंगे। देखो तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, और एक स्टेज आएगा, स्टेज मतलब एक टाइम आएगा जहां पे अब इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, वो जो भी है अब वो फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। देखो अब जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, एक टाइम आ रहा है, अब इतनी है तो बस इतनी ही रह रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, वक्त आ रहा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब ये है, टाइम के साथ अब ये चेंज नहीं हो रहा है।
इसका मतलब क्या है कि हम सिस्टम में उस स्टेज पे पहुंचे हैं जिसको आप इक्विलिब्रियम माय डियर स्टूडेंट्स कहते हो। और आपको पता है कि ये स्टेज यानी कि इक्विलिब्रियम आप उसी टाइम एस्टैब्लिश कर सकते हो सिस्टम में, और जब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है इन्वॉल्व वो चेंज नहीं होगी, माय डियर स्टूडेंट्स नहीं होगी। इसका मतलब है हेबर्स प्रोसेस में आप देखोगे एक स्टेज आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, whatever it will be in the mixture, it will remain constant and we call that stage कि इक्विलिब्रियम सिस्टम में आ गया है। तो यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगी, मतलब हाइड्रोजन की और इसकी कॉन्सेंट्रेशन, चलो मैं लिखूंगा, एक तो मेरे पास N2 है और दूसरा 3 टाइम्स H2 है, फिलहाल मैं ऐसे लिखूंगा, हालांकि इसका एक और तरीका है लिखने का, लेकिन वो हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। एक लॉ में पढ़ना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, वो मैं उसी में सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूं, और उस टाइम अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है दैट इज NH3 व्हाटएवर इट इज, तो वो उस टाइम इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट रहेगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम आया है। इस ग्राफ को मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं इसमें, सिंस रिएक्टेंट्स कितने हैं 2 और प्रोडक्ट्स कितने हैं 1। अगर आप यहां पे देखोगे नाइट्रोजन के कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, देखो इसके सामने कोई स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब है 1। यहां पे देखो हाइड्रोजन के सामने कितने हैं, इसका मतलब है 3, एंड यहां पे अमोनिया के सामने क्या है 2। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यूजुअली जो कोएफिशिएंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सामने, उनको आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स भी कहते हो, या कभी कभार हम उनको नंबर ऑफ मोल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब मुझे बताओ इन दो रिएक्टेंट्स में से किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन की है या हाइड्रोजन की है? जाहिर सी बात है यहाँ 3 टाइम्स है, ये इससे 3 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अब देखो मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, यही कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ देखिए, कि बिल्कुल यही ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, चेक इट आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली किनकी ज्यादा होगी, वो तो कंफर्म है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की ही ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स उस टाइम बने नहीं होते हैं। लेकिन रिएक्टेंट्स में से आप देखो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्या नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है या हाइड्रोजन की? जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स इन ग्रेटर क्वांटिटी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देयरफॉर हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ में आप दिखाऊंगा, मान लो मैं यहां पे दिखाऊंगा हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, चेक कीजिए। उसके बाद रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ही मैक्सिमम होती है, लेकिन वो उससे कम है, तो वो मैं ग्राफ मान लो यहां पे दिखाऊंगा, ये मान लो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। और उस टाइम इनिशियली रिएक्शन के स्टार्ट में बता प्रोडक्ट्स क्या बने होंगे उस टाइम नहीं, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो 0 होगी, तो मान लो ये अमोनिया आपका रिप्रेजेंट करता है। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, जब रिएक्शन प्रोसीड होगी, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डियर स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है। अब देखो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा, इसका मतलब ये हुआ दैट यहां पे दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे यहाँ पे 3 टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, देखो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है, और दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया से ज्यादा होगी एट स्टार्ट, लेकिन देखो जो ही टाइम जा रहा है, इनकी रिएक्शन हो रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगी, उस टाइम अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जब धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और एक स्टेज आएगा, आप देखोगे कि तीनों की कॉन्सेंट्रेशन जो भी है देखो इक्वल नहीं है, लेकिन जो भी है तीनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, लेकिन जो भी है माय डियर स्टूडेंट्स दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो आप कहोगे इस स्टेज पे क्या आ गया, इस स्टेज पे आपका इक्विलिब्रियम आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे आपका इक्विलिब्रियम आ गया, तो आप कहोगे कि यहां पे सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ गया, बिकॉज अब जो भी कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रोजन की है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन की है, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की होगी, इसके केस में NH3
जो भी कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की होगी वो जो भी होगी वो अब कांस्टेंट रहेगी और हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंचा है। और जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंचता है वहां पे दो प्रोसेसेस इक्वल रेट पे होती है और अपोजिट होती है। वन इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस। कहने का मतलब ये है दैट एट इक्विलिब्रियम जिस स्पीड से जिस रेट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया गैस बनाएगा उसी स्पीड से अमोनिया वापस कंबाइन करके हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस बनाएगा, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम मिक्सचर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं प्रीवियस एग्जांपल में भी ये समझा चुका हूं। नाउ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ दैट इक्विलिब्रियम जब आता है सिस्टम में चीजें तो कांस्टेंट रहती है लेकिन इक्विलिब्रियम रुका हुआ नहीं होता है। दो प्रोसेसेस इक्वल रेट पे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसी को हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। नाउ इस चीज को और ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज जो है वो समझाऊंगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे इस चीज को इरेज करूंगा, ग्राफ तो आपने समझा ही होगा। मुझे बताओ जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं और अमोनिया बनाता है, देखो नाइट्रोजन आपको पता है N ट्रिपल बॉन्ड N है, इस बात को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन आपको पता है H सिंगल बॉन्ड H होता है और अमोनिया जो गैस बनता है उसका स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स ये होता है NH3। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है और यहाँ पे लोन पेयर होती है। व्हाट आई वांट टू से इज दैट हियर the arrangement of atoms is nitrogen is bonded to nitrogen, here hydrogen is bonded to hydrogen, but here nitrogen is bonded to hydrogen. See, here hydrogen is not bonded to hydrogen like this. Here nitrogen is not bonded to another nitrogen atom because there is only one nitrogen atom. What does it mean? It means that system में हुआ है rearrangement of atoms, my dear students. So that's what we call as a chemical reaction, the process in which the rearrangement of atoms takes place, in which the breaking of old bonds and formation of new bonds occurs. We call that as a chemical process, we call that as a chemical reaction. इसका मतलब ये हुआ that जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं एक्चुअली उनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एटम्स आइसोलेट होते हैं, फिर वो वापस कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाता है। जरा मुझे वापस बता कि अगर मान लो आप अमोनिया ही लोगे, सपोज 2NH3 बैकवर्ड प्रोसेस लोगे आप, बैकवर्ड प्रोसेस अगर आप बैकवर्ड प्रोसेस लोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें एक तो नाइट्रोजन बनता है और उसमें हाइड्रोजन बनेगा। बैकवर्ड प्रोसेस में तो यही होता है, लेकिन यहां से फिर से आपको सीखना है दैट नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ये है, और जब ये वापस कंबाइन करके बैकवर्ड प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, तब जाके नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन विद सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इस चीज को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि फॉरवर्ड प्रोसेस में पहले एटम्स आइसोलेट होते हैं, फिर रिकॉम्बिनेशन होता है, बैकवर्ड प्रोसेस में भी वो ब्रेक होते हैं आपस में और फिर रिकॉम्बिनेशन होता है। इस चीज को समझने के लिए किया क्या गया, इन्होंने कहा कि अगर हम इस रिएक्शन को, मैं अभी इरेज करूंगा बिकॉज ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, ये ग्राफ आपने समझा होगा। व्हाट आई वांट टू से इज दैट डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए what scientists have done, they have performed the same reaction, that is Weber's process, but with the isotope of hydrogen. उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिया, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन लिया और उसमें उन्होंने कौन सा लिया, उन्होंने लिया ड्यूटेरियम, उन्होंने लिया ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है बेसिकली 1H2, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसका मास नंबर 2 होता है, और हाइड्रोजन जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल हाइड्रोजन वो होता है 1H1, उसमें एटॉमिक नंबर भी एक ही होता है और मास नंबर भी एक होता है। मतलब इसमें खाली प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बट इसमें एक और न्यूट्रॉन होता है। तो बेसिकली आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, देखो एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड के नीचे लिखा जाता है, और लेकिन जिनका मास नंबर वैरी करे उनको आइसोटोप्स कहते हो। और हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, और इसको आप सीधे ही डी से भी लिख सकते हो, सीधे ड्यूटेरियम। इसको हेवी हाइड्रोजन भी माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा दैट हम काम करेंगे, हम वेबर्स प्रोसेस करेंगे, लेकिन हम हाइड्रोजन नहीं लेंगे, हम ड्यूटेरियम लेंगे।
क्यों? बिकॉज इनको डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करना है। देखो कैसे, बाकी तो सेम है। देखो मैं लूंगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ही लेना है आपको, गैस प्लस। अब इन्होंने हाइड्रोजन के बजाय लिया ड्यूटेरियम, तो मैं H2 के बजाय लिखूंगा D2। फर्क यही है कि हाइड्रोजन के बजाय हाइड्रोजन का आइसोटोप लिया गया जिसको ड्यूटेरियम हम नाम देते हैं, और रिएक्शन अगर आप बैलेंस करोगे तो ये फिर से ये होगा। अब देखो जाहिर सी बात है, ट्वाइस NH3 के बजाय बनेगा ट्वाइस ND3, दैट्स इट। दिस इज ऑल्सो अमोनिया बट आइसोटोपिक अमोनिया। नाउ सी, यहां पे भी दो प्रोसेस, यहां पे भी सिस्टम ऐसे ही काम करेगा। पहले फॉरवर्ड प्रोसेस ज्यादा होगी, बैकवर्ड प्रोसेस जीरो होगी, फॉरवर्ड प्रोसेस डिक्रीज होने लगेगी, बैकवर्ड प्रोसेस इंक्रीज होने लगेगी, और एक स्टेज आएगा जहां पे फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वलाइज करेगी बैकवर्ड प्रोसेस को, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, और कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम जो भी होगी रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी, वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए, मान लो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन, समझना बात को, मैंने दो अलग अलग रिएक्शंस की। मान लो पहले के केस में दिस वाज केस फर्स्ट, दिस वाज केस फर्स्ट, दिस वाज केस फर्स्ट, एंड मान लो ये केस सेकंड है, ये हमने दूसरी रिएक्शन की। समझो इस बात को अच्छे से। मान लो इक्विलिब्रियम पे, और दोनों में कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर बाकी सेम रखूंगा, खाली मैंने उसमें आइसोटोप लिया। What I'm saying is that मान लो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की जो है, मान लो वो 100 ग्राम है, मान लो मैंने सपोज किया, और मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम पे, मान लो वो 110 ग्राम है, या 120, सपोज 120 ग्राम। अब मैंने ये इससे थोड़ा ज्यादा क्यों लिया? बिकॉज समझने के लिए, सेम मास नहीं हो सकता है, बिकॉज ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो इसलिए वहां पर थोड़ा वजन उससे ज्यादा आएगा। अदरवाइज आप कह सकते थे सर 100 यहां पे लिया, वहां पे भी लो 100, वो बराबर हो नहीं सकता, बिकॉज ड्यूटेरियम का मास हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए मैंने समझने के लिए आपको ये थोड़ा सा ज्यादा लिया। देखिए, और मान लो रिएक्टेंट्स का इक्विलिब्रियम पे जो मास है, मान लो 40 ग्राम है, और मान लो यहां पे इक्विलिब्रियम पे इन रिएक्टेंट्स का जो मास वहां पे रहेगा, मान लो चलो मैं 50 लेता हूं, सपोज मैं 50 ग्राम लेता हूं। अब देखिए, आप अच्छे से समझिए। अब क्या करूंगा मैं काम, अब ये रिएक्शन आपने क्लोज्ड कंटेनर में की है, ये रिएक्शन भी आपने क्लोज्ड कंटेनर में की है, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम तक पहुंच गई है, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम तक पहुंच गई है। देखिए, अब इस चीज को समझिए, यहां पे क्या है, यहां पे भी वैसे ही N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे D2 है, तो वहां पे H बॉन्ड H था, यहां पे D बॉन्ड D होगा ऐसे, और वहां पे NH3 था, यहां पे ND3। देखिए कितना सिंपल है और कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए व्हाट आई वांट टू से दैट, आपको पता है, मैंने ऑलरेडी कहा दैट ये जब ये आपस में कंबाइन होकर ये बनाते हैं, तो पहले ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स होता है, एटम्स आइसोलेट होते हैं, फिर वापस रिकंबाइन करके ये बनता है, और वापस जब ये बैकवर्ड प्रोसेस में ये बनाएगा, तो उस टाइम भी ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, उस टाइम नाइट्रोजन के एटम्स नाइट्रोजन के साथ और डी के एटम्स डी के साथ, तो ये बनाएंगे। अब देखो, मैं जो मुझे कहना है वो इंपॉर्टेंट, ये एक रिएक्शन वेसल में किया आपने क्लोज्ड में, और ये दूसरे रिएक्शन वेसल में किया आपने जो भी क्लोज्ड था, इसमें भी इक्विलिब्रियम आ गया, इसमें भी इक्विलिब्रियम आ गया। इसमें इक्विलिब्रियम पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ND3, मान लो 120 ग्राम, और इसमें कितनी है, मान लो 100 ग्राम, इसकी 40 ग्राम है, इसकी 50 ग्राम है। अब आपने क्या किया, नोट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं क्या बता रहा हूं, आप क्या कर रहे हो काम, आप मिक्स कर रहे हो दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर को। सो बोथ equilibrium mixtures are mixed with each other. Both equilibrium mixtures are mixed with each other. See what I am saying? Both equilibrium mixtures are mixed with each other. ये भी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया था, ये भी इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया था। अब आपने एक कंटेनर पे जो मिक्सचर था वो दूसरे में डाल दिया, सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम वहां पे है वो रहेगा। लेकिन आपको पता है अब सिस्टम में कौन कौन, देखो पहले क्या था, पहले वाले केस में इक्विलिब्रियम पे क्या क्या था, एक था N2 H2 और NH3। उस वाले अलग केस में क्या था इक्विलिब्रियम पे, N2 D2 और ND3। लेकिन जब आपने दोनों कंटेंट्स को मिक्स किया, आपको पता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो रही है। आप मुझे बताओ, जब आपने दोनों मिक्सचर्स को मिक्स किया, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको भी और इसको भी,
वो ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड फॉर्मिंग न्यू बॉन्ड्स वो तो होता रहेगा। आप मुझे बताओ, जब यहां से नाइट्रोजन टूट जाएगा, देखो यहां पे भी नाइट्रोजन है, यहां पे भी नाइट्रोजन है, चेक करो तो नाइट्रोजन के एटम्स आपको मिलेंगे, एक तो n एटम्स है, ब्रेकेज से तो यही मिलते हैं। हाइड्रोजन जब ब्रेक होता है, बिकॉज इक्विलिब्रियम पे भी ये ब्रेक होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, ब्रेकेज उस टाइम भी होगा। बताओ आपके पास कौन से एटम्स होंगे, H एटम्स होंगे आपके पास। दूसरी बात, आपके पास N और H एटम्स वो तो है ही, जब ये ब्रेक होगा तो N और H एटम्स तो आपस में ऑटोमेटिकली जो है वो रिलीज होंगे। लेकिन यहां पे D भी है, जब D भी ब्रेक होगा तो बताइए आपके पास और एटम्स क्या होंगे सर, हमारे पास D एटम्स भी होंगे। अब देखिए, आपको पता है ना दैट अब जब मिक्सचर में आप देखोगे, जब आपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो देखा, देखो वहां पे क्या होगा, मैं ये थोड़ा इरेज करूंगा यहां पे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में अब आपके पास मिक्सचर में कौन कौन से सबस्टेंसेस होंगे, देखो क्या क्या होगा आपके पास। एक तो होगा आपका H2, उसमें तो कोई शक नहीं है, देखो H2 होगा। दूसरा D2 भी होगा। तीसरा देखो H, जब H एटम के साथ ही अपने में कंबाइन होगा तो H2 बनाएगा। D जब अपने D एटम्स के साथ कंबाइन होगा वो D2 बनाएगा, बिकॉज एटम्स ब्रेक हो रहे हैं, यानी कि बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, एटम्स रिलीज हो रहे हैं, फिर वो वापस रिकंबाइन हो रहे हैं। मैं वापस रिकंबाइन होने के बाद की बात कर रहा हूं। जब H एटम्स ब्रेक होके कंबाइन हो रहे हैं, वो अपने H एटम के साथ कंबाइन होके H2 बनाएगा। दूसरी बात, D एटम जब ब्रेक होगा वो बॉन्ड बना के वो D एटम के साथ कंबाइन होकर D2 बनाएगा। लेकिन क्या H और D के साथ भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? डेफिनेटली है। इसका मतलब है एक और पॉसिबिलिटी है, आपको HD भी मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो है नॉर्मल है, यहाँ पे दोनों है आइसोटोप के, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रोटियम है, दूसरा ड्यूटेरियम है। सेम इज द केस विद, सेम देखो ये तो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड आपको ये कॉम्बिनेशन होगी। देखिए रिएक्टेंट साइड जब आपने दोनों इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स को मिक्स किया, रिएक्टेंट साइड आपकी ये कॉम्बिनेशन होगी एट इक्विलिब्रियम। आपको पता है प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन में क्या होगी, देखो वहां पे क्या क्या था, वहां पे बनता था NH3, देखो यहाँ पे एक तो NH3 है और यहाँ पे तो ND3 था। अब देखो कॉम्बिनेशन क्या क्या है, एक तो बनेगा NH3, देखिए NH3, दूसरा एक H निकालो उसके बजाय D डालो, बिकॉज D भी जा सकता है, D एटम्स भी कंबाइन हो सकते हैं। देखो NH2D ये भी बनेगा। दो एटम्स H के निकालो, एक और D डालो, NHD2, और बताओ तीसरा क्या बनेगा, जब तीनों हाइड्रोजन एटम्स आप रिप्लेस करोगे D से तो वहां पे ND3 बनेगा। तो आपके प्रोडक्ट साइड जो मिक्सचर में प्रेजेंट होगा वो ये होगी एट इक्विलिब्रियम, माय डियर स्टूडेंट्स। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम जब सिस्टम में आता है, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर ना होता, क्या एटम्स का ब्रेकेज होता, क्या वो वापस फिर से रिकंबाइन होते? नहीं होते। लेकिन जब हमने आइसोटोप इफेक्ट से ये देखा कि हाँ हमें अब मिक्सचर में रिएक्टेंट्स में H2 भी मिल रहा है, D2 भी मिल रहा है, HD भी मिल रहा है, और हमें अमोनिया के डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहे हैं, दैट इज NH3, NH2D, दैट इज NHD2 एंड ND3। इससे प्रूव होता है कि इक्विलिब्रियम पे सिस्टम रुका हुआ नहीं है, बल्कि दो प्रोसेसेस इक्वल रेट पे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। That's why we call that as an equilibrium is dynamic in nature। अब आप कहोगे सर टोटल मास कितना होगा प्रोडक्ट का, यहां पे कितना था 100 ग्राम, यहां पे कितना था 120 ग्राम, 100 ग्राम प्लस 120 ग्राम कितना हो गया 220 ग्राम। तो टोटल जो इनका मास होगा वो 220 ग्राम ही होगा। व्हाट आई वांट टू से इज दैट टोटल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल अमाउंट इक्विलिब्रियम पे चेंज होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट रहनी है, बट डिफरेंट फॉर्म्स यहां पे और यहां पे कितना था टोटल 40 प्लस 50, तो यहां पे टोटल इसका अमाउंट जो होगा वो 90 ग्राम्स होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जिससे आपने ये सीखा दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। In order to understand the equilibrium in dynamic in nature, so far as this concept is concerned, I am going to give you two more examples, but very quickly, because मैं already detailed discussion में ये चीजें आपको समझा चुका हूं, तो मैं आपको अब दो more examples दूंगा in a short while. So this is example number second for understanding of dynamic nature of equilibrium. तो ये मैंने एक और केमिकल रिएक्शन ली है जिसमें
नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मैंने लिया है और रिवर्सिबल प्रोसेस दिखा रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिंस आपको पता है आप पढ़ रहे हो डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड इसका मतलब ये है दैट व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड in a reversible chemical process, then at that stage no doubt the system is at equilibrium, no doubt there are certain parameters which remain constant, but the process is not at rest, the process is not at in a static position we can say, but it is going continuously, the process is going continuously, and we say that the system is dynamic, because dynamic means to change, that means the system is dynamic in nature. Now before we will discuss this reaction properly, I just want you to understand this concept. डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड अगर आप लेते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कलरलेस है, और ये कलरलेस है एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर आपके पास डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है N2O4 गैस, और आपने इसको क्लोज्ड कंटेनर में रखा है, और आपने इसको किसी ऐसी जगह रखा है जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको, और अगर आप वो गिलास बल्ब जो लेंगे जिसमें आप so at 0 degree centigrade, this gas, that is N2O4, it's colorless. Means if you have the glass bulb transparent, and in that glass bulb you have this gas, and you have kept it at 0 degree centigrade, you will see nothing, as if nothing is inside the glass bulb, because it is transparent, it is colorless. But so that's why I have wrote over here. देखो मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने आइस लिया, आइस आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और उस बल्ब गिलास बल्ब में मैंने यहाँ पे क्लोज लिया, और मैंने यहाँ पे लिया ये गैस, तो ये कलरलेस है, आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप यही गैस लोगे, यही बल्ब उठाओगे, और आप ये एक ऐसे कंटेनर में डालोगे माय डियर स्टूडेंट्स जहां पे मान लो पानी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग वाटर, मैंने समझो ये उठाया और मैंने इसमें डाला, बात समझिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कलरलेस है, गैस है। अगर आपने टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया तो ये गैस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, इस चीज को समझिए। और जो ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है ना, जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, आप देखते हो कि कलर जो है वो चेंज होता है फ्रॉम, यानी कि पहले कलर होता नहीं है कलरलेस, उसके बाद ये ब्राउनिश बन जाता है। जितना जितना NO2 ज्यादा बनेगा, वो कब ज्यादा बनेगा NO2, जितना जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना उतना ब्राउन कलर में इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो मान लो अगर मैंने ये गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उठाया, यानी कि कलरलेस से उठाया, और मैंने सीधा 100 में डाला, बॉइलिंग वाटर में डाला, आप देखोगे सारा का सारा N2O4 कन्वर्ट होगा, डिकम्पोज होगा, और वहां पे गैस बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड यू विल सी द कलर ऑफ दिस गिलास बल्ब विल बी इंटेंस ब्राउन। मैंने यहां पे लिखा, बात समझ आई? इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे दो प्रोसेस आपको समझनी है। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर आपने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपका ग्रेटर कन्वर्शन होगा फ्रॉम N2O4 टू NO2। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, 100 से नीचे नीचे आओगे, अगर आप 100 से नीचे नीचे आओगे ना, आप देखोगे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, ये कम हो जाएगा, थोड़ा फेड होने लगेगा, थोड़ा 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 थोड़ा, और अगर आपने 0 पे कर दिया तो ये कलरलेस बन जाएगा। उस टाइम कलरलेस बना तो इसका मतलब है खाली N2O4 है, N2O4 नहीं है। अगर पूरा इंटेंस ब्राउन है तो इसका मतलब है खाली NO2 है, N2O4 नहीं है। लेकिन अगर आप बीच वाली कंडीशन में आ गए, आपने कोई ऐसा टेम्परेचर रखा जहां पे मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, इसका मतलब क्या हुआ? ना ही कलरलेस होगा, ना ही इंटेंस ब्राउन होगा, बल्कि वो फेडेड ब्राउन होगा, वो काफी लाइट ब्राउन होगा। बट उसका मतलब है कि सिस्टम में वहां पे N2O4 भी होगा और NO2 भी होगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, अगर आप डिक्रीज टेम्परेचर को कर रहे हैं, तो उस टाइम आप यहां से जाओगे, तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही है, वन इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस, अनदर इज द बैकवर्ड प्रोसेस। वही हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आप 0 पे हो तो कलरलेस है, ये है। अगर आप ग्रेटर देन 0 मतलब 25, या सपोज मान लो आप 100 पे हो, या ग्रेटर देन, चलो मैंने यहाँ पे 25 लिया। फिर अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अब दोनों, मैंने अब एक और वाटर बाथ लिया, और उस वाटर बाथ को मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा। जब मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, तो अब मैंने दोनों बल्ब्स को उठाया और इसमें डाला। देखो ये बल्ब, इसमें खाली N2O4 था, मान लो जब मैंने इसमें डाला तो अब देखो क्या है, क्या टेम्परेचर, यहाँ पे क्या टेम्परेचर 0, बट यहाँ पे क्या टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या N2O4 खाली वहां पे रहेगा? नहीं, इसका डिकम्पोजिशन होगा।
जब डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन किसके हिसाब से होगा, एट दिस टेम्परेचर। जब डिकम्पोजिशन होगा आप देखोगे N2O4 कन्वर्ट होने लगेगा NO2 में, लेकिन सारा N2O4 NO2 में कन्वर्ट नहीं होने लगेगा। तो इस प्रोसेस में एक स्टेज आएगा जब सिस्टम में इक्विलिब्रियम आएगा, और आप देखोगे कि इस बल्ब का एक लाइट ब्राउन कलर होगा, लाइट ब्राउन, इंटेंस तो होगा नहीं बिकॉज पूरा ही कन्वर्ट नहीं हुआ है। मान लो यहाँ पे कलर जो होगा वो लाइट ब्राउन होगा, समझो इस बात को। और इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आया। इक्विलिब्रियम आप कैसे पता चलेगा आ गया, बिकॉज अब उस कलर में लाइट ब्राउन में चेंज नहीं आएगा, ना ही वो कम हो जाएगा ना ही वो बढ़ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ गया। दूसरा क्या है, ये वाला भी उठाओ और इसमें डालो। अब आप क्या कर रहे हो, आप 100 से जा रहे हो 25 की तरफ, तो आप डिक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर। जब आप डिक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर, इसका मतलब है अब बैकवर्ड प्रोसेस होगी। दैट मींस अब N2O वापस कंबाइन होगी, N2O4 बनाएगी। दिस इज द बैकवर्ड प्रोसेस, दिस इज द बैकवर्ड प्रोसेस। फॉरवर्ड प्रोसेस ये थी जहां पे N2O4 कन्वर्ट हुआ और NO2 बना। देखो दिस इज फॉरवर्ड प्रोसेस, N2O4 NO2 बना। तो ये कब होता है, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन बैकवर्ड देखो, यहाँ पे आपने NO2 ही लिया, सिंस आप टेम्परेचर 100 से 25 ले जा रहे हो, तो इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो उस टाइम कन्वर्शन होता है फ्रॉम ब्राउन टू लाइट ब्राउन। अब यहां पे भी एक स्टेज आएगा जब इक्विलिब्रियम आएगा। अब देखो इन दोनों गिलास बल्ब्स में जो कलर की इंटेंसिटी होगी माय डियर स्टूडेंट्स वो सेम होगी। व्हाई, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है। दैट मीन्स दोनों का जो लाइट ब्राउन कलर होगा वो सेम होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बोथ बल्ब्स हैव सेम इंटेंसिटी ऑफ द ब्राउन कलर, दैट इज लाइट ब्राउन। But you have to keep in mind that the system is not at rest. The two processes are going. One is conversion of N2O4 to NO2 and second is from NO2 to N2O4. But the process is such, the rate of conversion of N2O4 into NO2 is equal to the rate of conversion of NO2 to N2O4, and that can be easily understood because there is no change in the light brown color in both the systems. So this is another example by which you can understand the concept of डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम माय डियर स्टूडेंट्स। सो डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इट मीन्स दैट इन ए रिवर्सिबल chemical process or a physical process, since we are discussing here a chemical process, a stage is reached when the certain parameters of the system they remain constant, and at that moment of time there are two opposing forces which are going at an equal rate, and when the equilibrium is established, the system is basically it's changing like that. What I want to say is that the system is not actually at rest. The parameters have remained constant, but the processes are going, the two processes which are going but opposite to each other and an equal rate. And I have clearly make you understood the concept of dynamic nature of equilibrium by giving two good examples. One more example that you will do at home, that is also given in your NCERT टेक्स्ट बुक। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं उसको, लेकिन आप वो घर में प्लीज जाके देखेंगे, बहुत ही इजी है। दैट मीन्स अगर आप H2 दैट इज गैस प्लस I2 गैस को लेंगे, अगर इनके दरमियान जब रिएक्शन होती है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वहां पे बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड, दैट इज ट्वाइस HI। तो यहाँ पे भी आप कलर चेंज देखोगे, हाइड्रोजन को कोई कलर होता नहीं है, आयोडीन का पर्पल होता है और ये भी कलरलेस होता है। तो ये दोनों कलरलेस होते हैं और खाली ये होता है कलर। तो यहाँ पे भी सेम है, आप देखोगे फिर इसमें भी पर्पल कलर की इंटेंसिटी इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट रहेगी। तो आप इसको करेंगे प्लीज, ये मैं आपको एज सॉर्ट ऑफ होमवर्क दे रहा हूं, तो आप इसको करेंगे। तो आज के लेक्चर में वी हैड कंप्लीटेड द डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इन द कमिंग लेक्चर्स एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट यू टू लिसन केयरफुली, दैट इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द ईदर डायरेक्शन। ईदर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, you will this will be formed and you will reach to the equilibrium, or you start from this, then decrease the temperature, this will be also forward and you will reach at the equilibrium. That means equilibrium can be attained from the reactant side as well as the product side. This is a very important point that we are going to write later on in the characteristics of chemical equilibrium, that equilibrium in a reversible physical or a chemical process, here a chemical process, is attained from the either side. That means from the reactants or from the products. That means if you start from the reactants,
products will be formed and you will reach at the equilibrium. If you take the products as the initial substances, then the reaction will take place and again you will reach at the equilibrium stage. That means equilibrium is attained from either side, either from the reactants or from the products. So my dear students, this was video lecture number 6. इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो लेक्चर नंबर 7 में. टिल देन फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम.